we are going to discuss the another topic that is regarding the mixed design of the concrete elements. So this is the basically culmination of your course. The concrete technology course culminated on the mixed proportion designing, or the designing of the mixed proportion, or the mixed design of concrete. Okay, so this by considering different concrete properties and designing its proportion for those properties. So this topic basically will span over 5 to 6 lectures onwards, और आपको जो है you are all directed to attend all the classes. अगर आपने कोई क्लास मिस की तो then you will not be able to comprehend or to understand the mixed designing. ठीक है ना, आपका कुछ पोर्शन रह जाएगा and then you would not be able to understand further. ठीक है, और ऐसा इशू नहीं है. मिक्स्ड डिजाइन जो है बेसिकली I will not teach you how to design the mixed proportion, but I will teach that what kind of parameters play an important role in tweaking or in designing or in optimizing the design. ठीक है ना, इस पे भी डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल डिस्कशन होगी. then I will let you know different kind of things in designing. ठीक है ना, इसमें जो ना हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो mixed designing, how to define mixed designing? Basically, it's the process by which the concrete mixed performance characteristics are defined. Basically, by mixed design, the mixed performance characteristics are defined. In its mixed design process, that the parameters such as air content, workability, and required strength are established at minimum cost of the concrete. This is another kind of a definition. At minimum cost, we can design its parameters like air content, workability, required strength. Required strength is the prime property of the concrete for which concrete is used, widely acceptably used worldwide. ठीक है. अच्छा, these properties, ये जो properties हैं parameters, जो उसमें workability है, air content है, and then the required strength. Then you know the air content mean कि आपके पास how concrete will be durable against the freeze and thaw. For example, it represents durability. It represents the permeability in the concrete. Whereas the workability represents the fresh concrete properties, rheological property of the concrete. Whereas the required strength will give you the property of the hardened concrete. ठीक है ना, इन तीनों को मिला के तो then hardened properties में आपके पास और बाकी properties भी हैं, and all those properties, hardened properties में कौन-कौन सी हैं? जी बच्चों, स्ट्रेंथ उसमें आती है जी मॉड्यूलस सर. एग्जैक्टली, मॉड्यूलस वेलोसिटी है, क्रीप है. ठीक है ना, और जो है आपके पास स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ है, आपके पास जो है ना स्प्लिट स्ट्रेंथ है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ है. ठीक है ना, और उसकी जो है जो कंक्रीट की अपीयरेंस है, ठीक है, एंड ऑल दीज उसके हार्डनेस है. दीज ऑल आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन कंक्रीट. ठीक है ना, तो हार्डन कंक्रीट जो है, ऑल दी प्रॉपर्टीज आर बेसिकली रिलेटेड विद द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट. ठीक है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेटेड है. हायर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हायर विल बी द प्रॉपर्टीज. उसकी रिलेशन है ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से. आपको याद है रिलेशन है, हमने लास्ट टाइम भी जो डिस्कस किया था. These parameters are driven by the factors such. अच्छा, these parameters are driven by the factors such as
construction methods and structural requirement. पैरामीटर्स आपके पास मजीद होते हैं. The concrete will serve what kind of environment will be available? Excuse me, sir. आपकी आवाज एक हो रही है, sir. अच्छा, थैंक यू. मुझे बताया करें प्लीज. अच्छा, तो आई विल रिपीट. ओके, इसमें इस तरह होता है कि जो पैरामीटर्स हैं, लाइक structural concrete surfaces environment, basically it represent again the durability. ठीक है ना. कंस्ट्रक्शन मेथड्स हैं, आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन मेथड्स, जैसे जो ना पंपेबल कंक्रीट है या मैनुअल कंक्रीट है या किस मेथड से आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज डिपेंड. तो उस पे भी मिक्स डिजाइन डिपेंड करता है. एंड द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट मीन कि आपके पास जो है डीप कंक्रीटिंग है, आपके पास जो ना कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो किस लेवल की आपको रिक्वायर्ड है, और आपका जो है कॉलम आप कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, बीम कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, स्लेब कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, यू आर मिक्स डिजाइनिंग फॉर फाउंडेशन कंक्रीट, जो फाउंडेशन में यूज होगी बिल्डिंग की, जो पियर्स में या उसकी फुटिंग में, तो किस लेवल पे आप यूज करना चाह रहे हैं. तो देन these all three remains very important. तो आगे इसको जो ना कैसे हम देंगे, तो मेनली द पैरामीटर्स, द लिस्टेड पैरामीटर्स आर कौन से होंगे, इसको मजीद इसको कैटेगराइज करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो ना ग्रेड डिजिग्नेशन होगा ना, कि व्हाट ग्रेड ऑफ कंक्रीट you want to constitute or you want to manufacture or you want to cost. ठीक है ना. तो उसके लिए डिजाइन रिक्वायरमेंट में आपके पास जो ना ग्रेड सबसे पहले डिजाइन होता है. ग्रेड्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एज वेल एज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट. ठीक है ना. तो इसमें आपको आप स्ट्रेंथ्स मान लें. एंड देन द टाइप एंड द ग्रेड ऑफ द सीमेंट अवेलेबल, आपके पास कौन सा सीमेंट अवेलेबल है या जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो ना आपको फिक्स करना है. एंड देन द मैक्सिमम nominal size of the coarse aggregate. आप समझते हैं मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या होता है? नॉमिनल साइज क्या होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट? हैव यू स्टडीड इन योर लैब बच्चों? व्हाट डज दिस मीन, मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट एंड मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट? सर नहीं पता. नहीं सुना सर. अच्छा, नहीं पता ना. अच्छा, आपके पास जो है ना एक ह्यू है उसका ना ग्रेवल का, एक कोर्स एग्रीगेट का. ठीक है ना. उसमें से आप कैसे पता लगेगा आपको कि मैक्सिमम साइज एग्रीगेट कौन सा है? जो टॉप सीयू पे रिटेन करेगा. टॉप सीयू पे रिटेन कर लेगा. अच्छा, वो मैक्सिमम साइज है. तो फिर भी आपको साइज का तो अंदाजा ना हुआ, वो तो रिटेन हो गया साइज पे ना, उससे तो साइज से तो बड़ा है. देखो ना, लिसन, आपने जिस सीयू पे रिटेन किया उस सीयू का जो साइज है उससे तो आपका मैक्सिमम साइज फिर भी बड़ा है ना. फॉर एग्जांपल इफ इट इज 1 इंच आपके पास ओपनिंग है, तो इफ द एग्रीगेट गॉट रिटेन्ड ओवर 1 इंच, तो आपको पता नहीं है कि मुमकिन है कि वो 1.5 इंच हो मैक्सिमम साइज. ठीक है ना. 1.25 इंच हो. आपको कैसे अंदाजा होगा? यस, एनीबॉडी? सर उससे ऊपर वाला जो सीयू होगा उस पे रिटेन कर देंगे जी. मतलब जो टॉप सीयू है उससे थोड़ा ज्यादा ओपनिंग वाला सीयू यूज कर लेंगे. अगर उससे पास कर गया तो लाइक इस तरह से करेंगे कि जिस पे रिटेन हो रहा है और जिससे पास हो रहा है तो उन दोनों साइज के दरमियान का हो गया. लेकिन ये तो काफी लेंथी प्रोसेस हो गया. लेंथी प्रोसेस हो गया. जी अच्छा, सर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. ओके, मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि दिस हैज अ मेजर रोल इन मिक्स डिजाइनिंग ऑफ द कंक्रीट. ठीक है ना. तो आपको ये पता होना चाहिए. तो ये इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ. अच्छा, उसमें ऐसा होता है
कि आपके पास फॉर एग्जांपल यू हैव 3 काइंड ऑफ सीव्स, ठीक है ना, जिस पे जो है ना एक मिनट, तीनों पे पास होता है ना। लिसन, एक सीव है, इस पे भी पास हो गया, दूसरी सीव है, इस पे भी ये पास होता है, इससे कम नंबर की है सीव, ठीक है। फिर तीसरी सीव है, वो दोनों से कम नंबर की है, इस पे भी पास हो गया, ठीक है। चौथी सीव है, इससे जो कम नंबर की थी उस पे पास ना हो सका, रिटेन हो गया, गॉट रिटेन। तो इसमें से कौन से सीव का साइज जो है ना मैक्सिमम साइज के बराबर हो सकता है? सर ये लास्ट जिससे पास कर गया हो। जिससे लास्ट पास कर गया है। तो इसका मतलब है द मिनिमम अमाउंट, द मिनिमम नंबर ऑफ सीव, मिनिमम नंबर, सीव नंबर समझते हैं ना? जी सर। सीव नंबर क्या होता है? हाँ जी हाँ, नंबर ऑफ ओपनिंग पर लीनियर रेंज ना, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम साइज ऑफ द सीव through which 100% aggregate can pass through are known as maximum size of the coarse aggregate. ये सारे एग्रीगेट पास हो जाए जिस सीव से मिनिमम नंबर ऑफ सीव हो। अब इससे ऊपर जो जितनी सीव होगी ना, उसमें तो डेफिनेटली वो पास हो गई ना, क्योंकि वो उसका साइज बड़ा है इससे। लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ सीव और मिनिमम साइज ऑफ द सीव थ्रू व्हिच all aggregate can pass through are known as the maximum size of the aggregate. अच्छा, nominal size क्या है? Almost 90% of the coarse aggregate can pass through that sieve is known as nominal size of the aggregate. Got the difference? नॉमिनल वाला रिपीट करें सर। Nominal जो है 90% जो है ना, जो aggregates है ना, वो पास हो जाएं, सही है सर, समझ आ गई है। ठीक है ना। अच्छा, नॉमिनल में 90% इसलिए हम कहते हैं कि उसमें ना 10% जो है ना कुछ एग्रीगेट फॉरेन एलिमेंट भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है ना एग्रीगेट्स जो ना होंगे। आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट है ना, तो 10% वेरिएशन हो सकती है। मेनली ना मोस्टली 90%, 95%, 94%, 93% और द एग्रीगेट्स कैन पास थ्रू, तो वो होता है नॉमिनल साइज, यानी 90% मिनिमम आप कह सकते हैं। The minimum size of the sieve through 90%, approximately 90% of the aggregates can pass through are known as nominal size of the aggregate, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे टर्म यूज Excuse me, करते हैं जी। सर ये नॉमिनल साइज ये पीएचडी कर्व से फाइंड करेंगे सर फिर, ये जहाँ 90% कर्व पे पास हो रहा है पास होगा, एग्जैक्टली एग्रीगेट, तो वही साइज होगा फिर। वही साइज होगा। सही है सर। लेकिन उसके लिए आपको ना कोर्स साइड के कोर्स एग्रीगेट के लिए आपको ग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ग्रेडेशन ना फाइन एग्रीगेट पे करें मैक्स डिजाइन की। आप just you do the gradation for only fine aggregate, for coarse aggregate आपके पास दो पैरामीटर्स होने चाहिए। आपके पास की ना रॉडेड कंपैक्टेड डेंसिटी हो, आपको पता हो रॉडेड कंपैक्टेड डेंसिटी बस पता है क्या होती है? आप बंद करें प्लीज। अच्छा, नहीं पता आप सर। अच्छा आपने इसका जो है ना, जो एग्रीगेट्स हैं एक कंटेनर में आप ऐड करें, और उनकी जो है ना बेसिकली ये होता है ना, लूज फॉर्म में ऐड होते हैं ना किसी भी कंटेनर में, ठीक है ना एग्रीगेट्स। तो उसको रॉड से कंपैक्ट करें, रॉड से, तो उसमें जो है ना जो कंपैक्ट हो सकते हैं, तो देन उसकी जो ना कंटेनर का नॉन कंटेनर का वॉल्यूम नॉन होगा ना आपके पास। तो नॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में आपने जो चुके उसका वेट कर लें एग्रीगेट्स का, एग्रीगेट्स का वेट करना है, कंटेनर का नहीं करना। कंटेनर का वेट उसमें से माइनस करना है बाद में। तो उन एग्रीगेट्स को आप फिर देन यू कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ दोज एग्रीगेट इन द कंटेनर। तो आपके पास उसको बोलेंगे रॉडेड कंपैक्टेड डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट। आपके पास एक ये पैरामीटर आपको पता हो, एंड देन द अनदर पैरामीटर यू मस्ट नो द मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। ये कोर्स एग्रीगेट में ना ये आपको दो चीजें जरूर पता होनी चाहिए। उसके अलावा ऑफ कोर्स द वाटर अब्जॉर्प्शन, यू मस्ट नो the water absorption of the coarse aggregate, moisture content in the coarse aggregate, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे जाके ना इसको मजीद डिफाइन कर लेंगे, बट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन द मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, ठीक है।
तो ये जो ना, यू मस्ट नो दिस थिंग कि एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये इस कोर्स में जो इम्पोर्टेंट लैब्स है वो आप सर खुद नहीं कराते सर, जब ये फिजिकल आ जाए? नहीं, मैं खुद करवाऊंगा लैब। बेसिकली फरजाद सर लैब में नहीं आते आपकी? सर एक दफा आए थे सर, 5-10 मिनट के। चलो, मैं आइंदा के लिए ना इंजीनियर के बजाय मैं खुद करवाऊंगा बस, ठीक है? थैंक तो यू सर। आपकी लैब ना, फिजिकल जितनी लैब्स होंगी ना, मैं खुद करवाऊंगा, और मुझसे आपने फिर टाइम लेना है, ठीक है? सही है सर। लेकिन उसके लिए मेरी भी एक शर्त है। जी सर, क्या शर्त? आप सारे लोग आओगे? इंशाल्लाह सर, क्यों नहीं आएंगे सर। अच्छा, तो इसमें ऐसा है कि ये जो है ना, फर्स्ट टाइम इन जीआई के मैं लैब नहीं करवा रहा। उससे पहले ना मेरी जितनी जॉब्स थी ना, मैं जिस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया है ये सब्जेक्ट, ये जो है कंक्रीट, तो मैंने लैब अपने हाथों से खुद करवाई है, जैसे इंजीनियर करवाते हैं ना, बल्कि इंजीनियर भी नहीं, खुद जो है ना बच्चों के साथ मिलके ना मैंने लैब की है। तो ऐसा नहीं है कि ये लैब ना मतलब मैं नहीं करवाना चाहता या मैं नहीं करवा सकता या इस तरह। अब समझ आ रही है ना? तो ये यस सर, सर इसीलिए इसको तो करवा आपको लेंगे। बता मुझे रहे सर आप। मुझे बड़ा शौक भी है ना लैब करवाने का, लेकिन क्योंकि इधर टाइम नहीं होता था, तो इसलिए जो ना हमने लैब किसी मतलब फरजाद को दी थी, और मैं आई वाज श्योर कि वो जो ना खुद करवाएंगे ना। बेसिकली कंक्रीट लैब जो है ना, अगर प्रोफेसर खुद इन्वॉल्व नहीं है ना, तो आपको समझ नहीं आएगी। यस सर। यही सर, अच्छा ये बात है सर। अच्छा, तो मैक्सिमम नॉमिनल साइज जो है, देन यू मस्ट नो द ग्रेडिंग ऑफ द कंबाइंड एग्रीगेट, ठीक है ना? इसको भी आपको जो ना थोड़ा सा आपको दिस इज अनदर काइंड ऑफ पैरामीटर्स। एंड देन वाटर सीमेंट रेशियो, ये भी आपको जो ना अंदाजा होना चाहिए कि इसमें भी इसका भी यूज आएगा इसके मिक्स डिजाइन में। एंड देन द वोकेबिलिटी ऑफ कोर्स will define that what kind of structural requirement you have for concreting। तो उसके लिए वोकेबिलिटी जो ना कितनी रखनी है। तो एंड देन दी ड्यूरेबिलिटी विल बी दी सरफेस लाइफ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है ना? कंक्रीट की सरफेस लाइफ जो भी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट को ड्यूरेबिलिटी मीट करती है, ठीक है ना? आपके पास नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है, कंक्रीट की स्ट्रक्चर है, उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है भाई, इफ इट इज एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट? concrete has two kind of elements, one is internal and another one is external। external जो ना, जो सन को और जो वेदरिंग कंडीशन को एक्सपोज हो, उसकी जो लाइफ है दैट इज 50 to 60 ईयर, ठीक है? कोड के तहत जो कंक्रीट की जो लाइफ है दैट इज 50 to 60 ईयर। उसके बाद जो है ना, दैट मस्ट बी असेस्ड, और उसमें अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी डिटोरेट हो गई है, तो आप उसको जो ना उस पे आप उसको रिपेयर करो, या उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करो, या उसको जो है ना रेट्रोफिट करो, ठीक है ना? तो देयर आर अदर स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, ठीक है? और उसको डिमोलिश करके नई जो ना स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है? अच्छा, तरह की बात आई थी, तो देन आई वाज डिस्कसिंग। अच्छा, देयर इज अ मिसकंसेप्शन of the mixed design that the people think that mixed design and mixed proportion is the same thing, but they are not the same thing। तो मिक्स प्रोपोर्शनिंग एंड मिक्स डिजाइन क्या था? बेसिकली मिक्स डिजाइन था कि बेसिकली मिक्स डिजाइन, उसके मिक्स डिजाइन के प्रोपोर्शन की डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर उस मिक्स डिजाइन की एक आपको आई विल जस्ट शो यू अनदर काइंड ऑफ डेफिनेशन फॉर मिक्स डिजाइन। मिक्स प्रोपोर्शनिंग ये है, मिक्स प्रोपोर्शनिंग इज द रेशियो ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेडियंट्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना? सिंपल आपको डेफिनेशन है। मिक्स प्रोपोर्शनिंग जैसे होते हैं ना 1:4 रेशियो है, या देयर आर सम रेशियो ऑफ द कंक्रीट, और आप इसको कह सकते हैं इट इज द मिक्स प्रोपोर्शनिंग इज द प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट इन ग्रेडियंट्स। कंक्रीट में ग्रेडियंट्स कौन से हैं? यू हैव कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, टर्न होते हैं। सीमेंट, वाटर एंड एडमिक्सचर्स, दीज आर इंग्रेडिएंट्स। आपके पास इंग्रेडिएंट्स की जो प्रोपोर्शनिंग है, proportioning of ingredients into its proportion size is known as mixed proportioning, ठीक है ना?
whereas mixed design is the optimizing of this proportioning to have economical concrete for given properties of concrete, for given properties. ठीक है ना? तो that is mixed design. समझ आइए? Should I repeat? यस सर, Okay, एक I दफा will repeat रिपीट again. कर। अच्छा, मिक्स प्रोपोर्शनिंग जो है, पहले प्रोपोर्शनिंग देख लें। मिक्स प्रोपोर्शनिंग जो है बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो है जो कंक्रीट में जो उसके प्रोपोर्शन होते हैं ना, जिसमें जो ना कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स हैं, इन इंग्रेडिएंट्स का जो वो निकालते हैं, हम प्रोपोर्शन निकालते हैं डिफरेंट। मतलब फॉर एग्जांपल इसमें जो है ना 4:1/2 ऑफ द कंक्रीट इज कंपोज्ड ऑफ कोर्स एग्रीगेट, एंड 1/3 is the fine aggregate and plus is the cement and water. ये जो ना इसकी proportion हम ऐसे बना लेते हैं ना, जैसे 1:4 ratio है, that is the proportioning of the aggregates. ठीक है ना? The proportioning is the basically the ratio of different aggregates, the ratio of different concrete ingredients for concrete mix is known as mixed proportioning. Ratio है, ratio of different concrete ingredients for concrete mix is known as mixed proportioning. Whereas the mixed design जो है आपके पास है ना, mixed design में जो है कॉस्ट भी आ जाएगी और concrete properties भी आ जाएंगी। तो for given concrete properties and for optimum concrete properties the mixed proportioning, again the word will be used, mixed proportioning of concrete and gradients will define the mixed design of the concrete. ठीक है ना? तो आपके पास जो है जी सर, ये ग्रेडिंग जो है मिक्सचर प्रोपोर्शन में आएगी जी सर? ग्रेडिंग जो है, ग्रेडिंग इसमें आएंगी मिक्सचर प्रोपोर्शन में? ग्रेडिंग ऑफ व्हाट सर ग्रेडिंग ऑफ सर इंग्रेडिएंट्स जो एग्रीगेट्स है सर। नहीं, एग्रीगेट्स की ग्रेडिंग जो है ना बेसिकली ना जो प्रोपोर्शनिंग होती है वो जो है ना कंक्रीट का जो उस पे इंग्रेडिएंट्स है ना किस प्रोपोर्शन में जो है ना वो मिक्स बना रहे हैं, दैट इज प्रोपोर्शनिंग। तो मिक्स डिजाइन जो है, मिक्स डिजाइन इज बेसिकली यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोपोर्शनिंग, यू आर फोकसिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर एग्जांपल इसकी प्रॉपर्टीज जो ना फ्रेश कंक्रीट प्रॉपर्टीज क्या है, हार्डन कंक्रीट प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रेंथ कितनी है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, एंड देन यू वांट टू नो द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, वो क्या है। उन चीजों को टारगेट करके आप ऑप्टिमाइज डिजाइन करते हैं। ऑप्टिमाइज डिजाइन मीन लोअर कॉस्ट पे डिजाइन करते हैं, देन दैट इज योर डिजाइन। लोअर कॉस्ट पे आप जब प्रोपोर्शनिंग करते हैं फॉर ऑप्टिमाइजिंग फॉर फिक्सिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, तो देन दैट इज योर मिक्स डिजाइन। समझ आ रही है ना? अब भी नहीं समझे? फॉर एग्जांपल आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे इस टक टक से? ये कोई दरवाजा बना रहे हैं, मैं उसको स्टॉप करवा दूंगा आधे घंटे के लिए। नो सर आवाज नहीं आ रही सर यहाँ आवाज नहीं आ रही। अगर अच्छा आपको कोई इश्यू नहीं है तो बस सही है सर। अच्छा थोड़ा सा मैं बग होता हूँ, एक मिनट। अच्छा then we have some input data। अच्छा इस पे समझ लीजिए जी जी Sir, to get the required यानी कि characteristic of concrete जो mixed proportion होती है उसको हम mixed design कहते हैं। एग्जैक्टली उसको मिक्स डिजाइन कहते हैं। और जो है और मिक्स प्रोपोर्शनिंग क्या है? मिक्स प्रोपोर्शनिंग सिर्फ जो है ना हम उस पे हमारा फोकस नहीं है कि कंक्रीट से क्या उसका आउटपुट है,
तो जस्ट हम फोकस करते हैं इंग्रेडिएंट्स पे, उनके इंग्रेडिएंट्स की क्या रेशियो आपस में, दैट्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। एंड देन देयर कैन बी डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डेटा आपने जो ना उसमें ऐड करना है ड्यूरिंग डिजाइन। तो इनपुट डेटा आपके पास क्या होना चाहिए, यू मस्ट नो द फिजिकल डायमेंशन ऑफ कंक्रीट एलिमेंट, आपके पास पता हो। From that physical element you can drive maximum size of aggregate. From that physical element जो है आप then vocability can be आप जो ना मतलब आप फिक्स करते हैं। Similarly इसके आउटपुट इसका है ना, then the construction methods जो है ना आपकी जो कंक्रीट है, जो कंक्रीटिंग हो रही है ना कंस्ट्रक्शन मेथड, तो उसमें भी डिपेंड करती है कि आपको जो ना किस किस्म की वोकेबिलिटी रिक्वायर्ड है ऑन साइट, ठीक है। This is the input and output is workability. Workability का then workability assessed through slump test. वो उसका indicator है ना, output है. Then the service environment. Service environment is always governed by the durability as well as the structural and mechanical properties and the air content in the concrete. ठीक है ना, उसकी जो concrete की जो service environment है या जिसमें concrete ने सर्विस एनवायरनमेंट फॉर बोथ फॉर फ्रेश कंक्रीट एज वेल एज दी हार्डन कंक्रीट, दोनों के लिए है ना। आप जो है कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कर रहे हैं, हॉट वेदर कंक्रीटिंग कर रहे हैं, आप जो है नॉर्मल वेदर पे कंक्रीटिंग हो रही है, एंड देन द एक्सपोजर कंडीशन ऑफ द कंक्रीट थ्रू इट्स सर्विस लाइफ। तो इस पे भी डिपेंड करती है किस किस्म का जो ना आपने कौन सी प्रॉपर्टीज आपने देखनी है कंक्रीट के अंदर। एंड देन द स्ट्रक्चरल डिजाइन में आपके पास देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ यू नीड फॉर द कंक्रीट, तो उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास जो है ना इनपुट डेटा, ये आपके पास पहले से पता हो कि व्हाट काइंड ऑफ इनपुट डेटा यू रिक्वायर्ड फॉर द मिक्स डिजाइन, ठीक है ना। उसमें क्या है ये डेटा जो ना प्रायर टू द डिजाइन यू मस्ट नो दैट द कंक्रीट मस्ट is to be designed for which kind of the element of the construction of the structural element. For example, ये कौन से फाउंडेशन के लिए कंक्रीट है या ये जो है उसकी है बीम के लिए आप करना चाह रहे हैं, स्लैब के लिए करना चाह रहे हैं, किस स्ट्रक्चर में करना चाह रहे हैं, और कौन सा कंस्ट्रक्शन मेथड यूज होगा उसका जो ना कंक्रीट पोरिंग के लिए, ठीक है ना। उसके लिए कंक्रीट मिक्सिंग के लिए मिक्सर यूज करेंगे, हैंड मिक्स होगी, किस किस्म की कंक्रीट होगी ना। एंड देन उसकी सर्विस एनवायरनमेंट क्या होगी जिसमें कंक्रीटिंग हो रही है, या उसके बाद जो एक्सपोजर कंडीशन है वो क्या होंगी। एंड देन आपके पास जो है डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए कंक्रीट की, जो है स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये आपको देन यू मस्ट नो दीज पैरामीटर्स। ये इसको इनको आप इनपुट आप देंगे, देन फ्रॉम दीज इनपुट वी विल गेट आउटपुट। आउटपुट क्या होगी कि फ्रॉम फिजिकल डायमेंशंस तो हम लेंगे मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ठीक है ना। ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे आज की लेक्चर में कि नॉमिनल साइज जो है जो कितना कैसे इफेक्ट होता है डायमेंशन से। अच्छा, फिर जो है आर यू लिसनिंग गाइस? यस सर। ओके, यस सर। अच्छा, कंस्ट्रक्शन मेथड्स जो है उसमें जो है उसकी जो वोकेबिलिटी है वो जो ना मतलब उसमें असेस होती है, एंड वोकेबिलिटी इज ऑलवेज मेजर्ड थ्रू स्लम्प टेस्ट। हम देखते हैं ना उसके लिए वोकेबिलिटी के लिए स्लम्प टेस्ट भी है, और बहुत सारे टेस्ट हैं पाकिस्तान हमारी लैब में अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ आपके वीवी टेस्ट भी कर सकते हैं, वीबी, ठीक है। एंड देयर इज अनदर टाइप ऑफ टेस्ट दैट इज द कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, उससे भी स्लम्प फाइंड होता है। फ्लो टेस्ट भी है, ठीक है ना। सो मेनी टेस्ट अवेलेबल द लैब। सिमिलर सर्विस लाइफ के लिए जो ना आप ड्यूरेबिलिटी थी, एयर कंटेंट थे, तो उसके लिए आपके पास जो है ना फॉर ड्यूरेबिलिटी वाटर टू सीमेंट रेशियो आपके पास रिक्वायर्ड होनी चाहिए। कितनी आप डिफाइन करते हैं बेसिकली, इफ द वाटर सीमेंट रेशियो इज मोर देन 60%, if water to cement ratio if it is more than 60%, concrete will not stand the durable। आपके पास जो ना मतलब जो कंक्रीट है by thumb rule this will be not durable concrete। तो वो जो है उसमें से। एंड सिमिलरली आपके पास जो है एयर वाइड जो है ना वो भी रिक्वायर्ड होते हैं कि इफ मोर अमाउंट ऑफ द एयर कंटेंट इन द कंक्रीट हायर विल बी द पोरोसिटी इन द कंक्रीट। इफ द पोरोसिटी ऑफ कंक्रीट इज हायर then the concrete will not be durable against किसके ड्यूरेबल नहीं होगी,
उसके लिए सल्फेट अटैक के लिए या बाकी क्लोराइड इनग्रेस के लिए, तो लेकिन इट विल बी ड्यूरेबल अगेंस्ट फ्रीजिंग इन टाइम, ठीक है ना। तो उस पे जो है ना तो बड़ा ट्रिकी है ना कि आपने कितना जो है ना एयर कंटेंट रखने हैं और क्यों रखने हैं। देन द स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ है वो भी आपको रिक्वायर्ड होती है, उसमें जो है आपके पास आएगी उसकी कंक्रीट की जो ना फ्लेक्सर स्ट्रेंथ आएगी, उस नहीं सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी, फिर फ्लेक्सर स्ट्रेंथ आएगी। दिस फ्लेक्सर स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज द मॉडुलस ऑफ रप्चर। अब समझते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होता है, सुना है मॉडुलस ऑफ रप्चर? ये आपने यस पढ़ाया सर, था सर? पढ़ाया था? जी सर, यस स्लाइड में सर। इंक्लूड किया था जब स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे। मॉडुलस ऑफ रप्चर, अच्छा। एंड सिमिलरली आपके पास स्प्लिट स्ट्रेंथ कितनी है, स्प्लिट स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है ना, तो आपके पास कैसे स्प्लिट हो जाए तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। एंड देन आपके पास पता होना चाहिए, यू मस्ट नो द ईसी कंक्रीट की जो ई वैल्यू है, दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगेन ये जो आउटपुट और इनपुट डेटा है उसको जो है कैसे उनकी रिलेशन बनती है आपस में, तो देन हाउ दीज आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, दैट इज वाटर सीमेंट रेशियो जो है स्ट्रेंथ से कैसे उसका रिलेशन बनता है, इस किस्म का ग्राफ बनेगा ना। सिमिलरली आपके पास जो है वाटर सीमेंट रेशियो का किससे, आपके पास लम्प से कैसे ग्राफ बनेगा, इस किस्म का ग्राफ बनेगा ना। तो सिमिलरली एज ऑफ द कंक्रीट जो है स्ट्रेंथ का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो दीज आर ग्राफ्स जो है ना, दीज आर द कंट्रोलिंग रिलेशनशिप। आप जो ना एक चीज कंट्रोल करेंगे दूसरी भी कंट्रोल होगी। फॉर एग्जांपल वाटर सीमेंट रेशियो आप कंट्रोल कर रहे हैं तो यू कैन कंट्रोल दी स्लम्प, उसकी जो ना, if you are controlling the water cement ratio, again basically you are controlling the क्या कंट्रोल कर रहे हैं आप, उसकी जो ना स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसको जो है ना, तो आपके पास कंट्रोल इज इन योर हैंड, तो आपने एक पैरामीटर को ट्वीक करने के लिए दूसरे पैरामीटर को कम या ज्यादा करेंगे, तो देन यू कैन अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना, उसको भी आप कर सकते हैं कम या ज्यादा। तो मेनली मिक्स प्रोपोर्शनिंग में जो यूनिट यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल दिस आई विल फोकस एट हियर यूनिट्स। आप इसमें जो ना जैसे होता है ना, उसमें कौन से आपके पास इंग्रेडिएंट्स होंगे, उसमें there are different kinds of ingredients to be used in the concrete mix. उसमें आपके पास you will have the water, you will have the cement and the fly ash. Fly ash and the cement are the same thing because it will use for each other. combined form में यूज होगा ना। फ्लाई ऐश की जगह हम आप सप्लीमेंटेशन मटेरियल भी रख सकते हैं। सिमिलरली कोर्स एग्रीगेट, सही है ना, एंड कोर्स एग्रीगेट एंड डिफाइन एग्रीगेट्स, कॉल इट एग्रीगेट्स। एयर कंटेंट, एयर रिटर्निंग एडमिक्सर्स, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सर्स, ये these are all admixtures. So fly ash represent the mineral admixtures, whereas these admixtures, air returning admixtures and water reducer admixtures, they represent the बच्चों, they represents the केमिकल एडमिक्सचर। chemical admixtures. तो अब इनकी यूनिट जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ना आपके पास जो है ना वाटर की यूनिट क्या होगी जब जब हम मिक्स डिजाइन में करेंगे, केजी कंक्रीट इज ऑलवेज डिजाइन फॉर 1 क्यूबिक मीटर के लिए डिजाइन होती है, पता है आपको ये बात? For a cubic meter, how much Yes, sir. amount of water required in term of kg in, ठीक है, सही है ना। आप सिमिलरली सीमेंट भी आपके पास क्यूबिक मीटर कंक्रीट में कितना सीमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कितना आप कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली फॉर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट आप जो कोर्स एग्रीगेट कैलकुलेट करते हैं, फाइन एग्रीगेट कैलकुलेट करते हैं। एंड देन इट्स हियर कम्स द एयर कंटेंट। एयर कंटेंट हमेशा जो है ना बाय वॉल्यूम इसका लेते हैं परसेंटेज। आपके पास कंक्रीट का वॉल्यूम कितना है डिजाइन के वक्त? 1 मीटर क्यूब सर। 1 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब है कि एयर कंटेंट इफ इट इज 2%, तो कितने मीटर क्यूब हो गया 2%? बताओ ना, हरी अप। 0.02 ऐसा 0.02 क्यूबिक मीटर, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली केमिकल मिक्सचर जो है ना इज ऑलवेज मेजर इन टर्म ऑफ मिलीलीटर्स, उसको कहते हैं, लेकिन मिलीलीटर्स में तो ये मेजर होता है, लेकिन इट इज फिक्स्ड
विद सीमेंट अमाउंट, सीमेंट अमाउंट से इसको लेते हैं। फॉर एग्जांपल इट मस्ट बी 0.1% ऑफ द सीमेंट वेट, हमेशा वेट से होगा ना, 0.1% ऑफ द सीमेंट वेट, 0.1%, 4%, इट कैन गो अप टू 2%, 2% से ऊपर नहीं जा सकता ऑफ द सीमेंट। समझ आ रही है ना? जितनी सीमेंट आप ऐड कर रहे हैं तो केमिकल एडमिक्सचर जो है ना इस परसेंटेज में होगा, परसेंटेज ऑफ द सीमेंट, एंड परसेंटेज ऑफ सीमेंट से कैलकुलेट आप करेंगे इन मिलीलीटर, क्योंकि लिक्विड होता है ना। अच्छा, केमिकल एडमिक्सचर्स को आप कंक्रीट में ऐड कैसे करते हैं? आपने जो ना कंस्ट्रक्शन में पढ़ा होगा, हाउ टू ऐड। मिक्सिंग के फ्रेश दौरान सर मिक्सिंग के दौरान मिक्सिंग के दौरान करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? मिक्सिंग के दौरान ना केमिकल एडमिक्सचर्स इज ऑलवेज एडेड इन वाटर। आप पहले पानी में उसको ऐड कर लेंगे, एंड देन व्हेन यू ऐड वाटर, पानी में ऐड करके मिक्स हो जाएगा। व्हेन यू ऐड वाटर, वाटर जब ऐड होता है कंक्रीट में, तो ये भी ये एड मिक्सचर्स या केमिकल मिक्सचर जो है वो भी कंक्रीट में ऐड हो जाएगा। समझ आ रही है ना? सिमिलरली ये जो फ्लाई ऐश है या मिनरल मिक्सचर्स हैं, दे आर एडेड विद सीमेंट। सीमेंट के साथ पहले उसको ऐड अप करेंगे और फिर सीमेंट और उसको मिक्स किया जाएगा, एंड देन दोज ऑल जो जो आपके पास जो जो एडमिक्सचर्स हैं तो उसको फिर कंक्रीट में ऐड करेंगे, ठीक है ना? एक्सेप्ट स्लीका फ्यूम। स्लीका फ्यूम के केस में दैट इज डिफरेंट। स्लीका फ्यूम अगर आपके पास फ्लाई ऐश की जगह स्लीका फ्यूम हो, माइक्रोस्लीका इज आल्सो नोन एज माइक्रोस्लीका, उसको हम कैसे ऐड करते हैं? उसको आप जब पहले सबसे पहले कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट को मिक्स करते हैं ना बच्चों, ऐसे ही है ना? जी Yes, यस sir. सर। यस सर। कंक्रीट में मिक्सिंग के लिए आप क्या करते हैं? फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट को मिक्स करते हैं, और देन जब जब वो थॉरली मिक्स हो जाए फिर उसमें सीमेंट ऐड कर लेते हैं, फिर उनको मिक्स करते हैं। तो जब ये तीनों जो अब आपस में मिक्स हो जाए फिर उसमें वाटर ऐड करते हैं, फिर इन सबको मिक्स करते हैं, तो फिर आपके पास जो है ना मिक्सर बनता है। ऐसे ही है ना? यस जी सर। तो अच्छा, यस सर। तो जब केमिकल मिक्सर ऐड करेंगे तो वाटर में ऐड होगा, तो एग्जैक्टली आपको जो है ना उसमें जब आप वाटर ऐड कर लेंगे सीमेंट में, कंक्रीट में, तो आप उस वक्त जो है ना केमिकल मिक्सर उसके साथ ऐड हो जाएगा। लेकिन मिनरल मिक्सचर्स इज ऑलवेज एडेड विद सीमेंट। तो जब सीमेंट उसको ऐड करेंगे तो उससे पहले सीमेंट के साथ उसको मिक्स करेंगे आप। तो एक्सेप्ट स्लीका फ्यूम। स्लीका फ्यूम के केस में आपने क्या करना है कि जब आपने सैंड ऐड करने से पहले कोर्स एग्रीगेट में इसको थोड़ा सा इसको मिक्स करना है, सॉरी थोड़ा सा नहीं, इसको सारा मिक्स करना है कोर्स एग्रीगेट पे। तो ये कोर्स एग्रीगेट की सरफेस पे डिपॉजिट होगा। और अच्छा, कोर्स एग्रीगेट की सरफेस को आपने पहले वेट करना है, तो आप थोड़ा सा पानी जो है ना, जितना पानी रिक्वायर्ड है आपको कंक्रीट में, उसमें से कुछ पोर्शन ऑफ वाटर आप जो है ना कोर्स एग्रीगेट में आप ऐड करेंगे। तो कोर्स एग्रीगेट को आप मिक्स करेंगे उस वाटर के साथ, तो देन द कोर्स एग्रीगेट विल बी इन वेट फॉर्म, वेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोर्स एग्रीगेट ना पानी उसकी सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस के साथ लग जाएगा ना, तो कोर्स एग्रीगेट वेट हो जाएंगे। एंड देन यू कैन ऐड द स्लीका फिल्म। स्लीका फिल्म ऐड करेंगे फिर उसमें, तो वो जो कोर्स एग्रीगेट है उसकी जो सरफेस है उसमें स्लीका फिल्म जो है ना उसके पार्टिकल डिपॉजिट हो जाएंगे। एंड देन यू कैन ऐड द सैंड, and then you can add the cement, and then you can add after that water। तो वो सारा जो है मिक्स प्रोपोर्शन आप बनेगा। ये मुझसे जो ना फिर कभी पूछिएगा, डिटेल डिस्कशन होगी कि स्लीका फिल्म को ऐसे ऐड कम करते हैं, ठीक है? ठीक है, आप फिर कभी पूछते हैं मुझसे, आज नहीं, यस सर। सर। ठीक है ना? आज जो ना हम कहीं और निकल जाएंगे। तो मिक्स, अच्छा इसमें जो है another thing that is important is the selecting characteristics। तो ये जो है characteristics हैं, तो how to select these characteristics, this is important, ठीक है ना? तो उसमें जो ना what kind of characteristics should be in concrete? The strength, water to cement ratio, the aggregate content, the size of the aggregate, the amount of the aggregate, the gradation of the aggregate, ठीक है ना? Air content, the slump size, ठीक है ना? Water content, cementing type and the content and the chemical admixtures। These, ये जो 8 आपके पास मैंने गिने हैं ना, these are basically selecting
characteristics of the concrete. So before a concrete mix can be proportioned, mix characteristics are selected based on what? Based on 3-4 things: intended use of the concrete, exposure condition, size and shape of the building material, building element, the physical properties of concrete required for the structures. तो ये जो है आपके पास 4-5 जो है ना मेन जो है ना वो हैं पैरामीटर्स हैं, इनकी बेस पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या रखते हैं, मेजरली हम डिफाइन करते हैं. Although strength is important, other properties such as durability, permeability, wear resistance are also important, especially when considering the life cycle design of the structures. Mixed characteristics should reflect the need for structures. For example, resistance to chloride ion should be verifiable and appropriate test method specified. तो आपके पास जो है जब आपने जो जब मिक्स डिजाइन करेंगे तो उसके बाद जो है ना आपने टेस्ट मेथड जो है ना वो भी आप स्पेसिफाई करेंगे फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ द टेस्ट, आपने जो ना ड्यूरेबिलिटी के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है ना. इनमें जो है जो the prime importance one is the strength of the concrete. Strength of the concrete is always governed with the water cement ratio apart from other parameters. ये जो है मेजर जो ना आपके पास main thing है. In 1918 this factor was established that for fully compacted concrete made with clean and sound aggregate, strength and other desirable properties of concrete under given job condition are governed by quantity of mixing water per unit of cement or cementing material, यानी water to cement ratio. तो ये अब्राहम जो था जो इसने कब डिफाइन किया था 1918 में, आज से तकरीबन 100 साल पहले, के वाटर टू सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट. ठीक है ना. लेकिन आजकल इंजीनियर्स को पता होता है वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करती है, लेकिन ये नहीं पता होता व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वाटर सीमेंट रेशियो एंड कंप्रेसर स्ट्रेंथ और द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट. क्या रिलेशन है भाई? इनवर्स है सर, इनवर्स. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है ना. हायर द अमाउंट ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियो, लोअर विल बी द स्ट्रेंथ. सही है ना. You can't expect a higher strength concrete with water cement ratio over 70% or over 60%. आपके पास तो strength उसकी हमेशा कम होगी. Whenever you talk about the strength, you first talk about the water cement ratio. You ask about water cement ratio. What was the water cement ratio कि आपकी strength इतनी आई है. समझ आ रही है ना. ये जो है यस सर, ये आप ना अपने सीनियर से पूछेंगे तो उनको पता होगा, लेकिन आप किसी इंजीनियर से पूछें तो तकरीबन आई कैन बेट यू कि तकरीबन 70% ऑफ द केस कि इंजीनियर्स जो है ना आपको ये तो बता सकेंगे वाटर सीमेंट रेशियो इसको कंट्रोल करती है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये कैसे जो ना उसकी यूनिवर्सल रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है. पहले तो पता नहीं होगा. इफ दे नो देन देयर लाइकलीनेस कि उनको ये अंदाजा नहीं होगा कि व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन दे हैव. ठीक है. तो उसमें जो है within normal range of the strength used in concrete construction, compressor strength is always inversely proportional to the water cement ratio. ठीक है ना. आपने ये देखना है. अच्छा, compressor strength में सर जी सर ये वाटर टू सीमेंट रेशियो अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो किस लिमिट तक हम इसे डिक्रीज कर सकते हैं ताकि हमें मतलब ऑप्टिमम या ज्यादा स्ट्रेंथ हमें मिल जाए? क्योंकि अगर लाइक 0% वाटर हम डालें तो उससे तो बनेगा ही नहीं. तो सर ये कंसिस्टेंसी लिमिट होगा. तो ये कंसिस्टेंसी लिमिट होगा सर कि सीमेंट कितने वाटर पे रिएक्शन स्टार्ट करेगा या इसकी कौन सी लिमिट होगी सर? लोअर. वो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया. मुझे आपको अपना नाम बताएं और अपना नंबर बताएं. सर फहद इकबाल और रेंज नंबर 2019-122. 122. ठीक है. तो थैंक यू.
अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। असल में ऐसा होता है ना, वाटर सीमेंट रेशियो, देयर इज ए मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो। वो कितनी है आप जो है ना आप रख सकते हैं, वो होती है जनाब, वेरी करती है। बेसिकली इट इज कैलकुलेटेड कि जो कंक्रीट में इंग्रेडिएंट्स है ना, जैसे कंक्रीट में नहीं, सॉरी, सीमेंट में इंग्रेडिएंट्स है, रिएक्शन बेसिकली वाटर का किससे होता है? सीमेंट से होता है ना। तो सीमेंट में इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं सीमेंट के? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, डाई कैल्शियम सिलिकेट है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फाइरेट है, ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है। ये 4 इंग्रेडिएंट्स है ना बेसिकली। जी सर। अच्छा, ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, इन चारों का ना अपनी अपनी वाटर रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल किसी को ना 20% वाटर, 19% वाटर रिक्वायर्ड है। इफ इट इज 100%, 100 ग्राम अगर डाई कैल्शियम सिलिकेट है तो उसको 21 ग्राम क्या रिक्वायर्ड होगा? वाटर रिक्वायर्ड होगा फॉर फुल हाइड्रेशन, फॉर इट्स फुल हाइड्रेशन। ये रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्शन। सही है। सिमिलरली आपके पास जो ना ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, उसके लिए भी आपको 23% रिक्वायर्ड होगा पानी, ठीक है ना। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फाइरेट है, उसको 27% वाटर रिक्वायर्ड है। कितना वाटर रिक्वायर्ड है? 27%। 27% पानी होगा, यानी आपके पास 27 ग्राम अगर वाटर है तो 100 ग्राम आपके पास जो ना टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फाइरेट है, देन दे कैन रिएक्ट विद ईच अदर फॉर फुल हाइड्रेशन, फुली रिएक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास जो है ना, तो ये जो 4 इंग्रेडिएंट्स है इनका डिफरेंट आपके पास होता है ना। तो इंजीनियर्स आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं आपके इंग्रेडिएंट प्रोपोर्शन कितना है, और उसके लिए जो ना ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ द वाटर जो है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर जो है ना, the minimum amount of the water required for their full hydration कितना होगा? तो that is 24 to 25, some people say 23%। तो लेकिन उसको जो ना चले राउंड ऑफ कर लेते हैं 25%। आपके पास फॉर फुल हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट यू नीड 25% वाटर। आपकी वाटर की अमाउंट जो है ना 25% से कम तो होनी नहीं चाहिए। समझ आ रही ना? इफ यू वांट टू हैव जी फुल सर। हाइड्रेशन, ठीक है ना। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वाटर टू सीमेंट रेशियो, सही है। तो 25% से आप 20% पे आप ले आएंगे, 24% पे आएगा, तो आपके पास यू नो सम प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट विल रिमेन अनहाइड्रेटेड। जी सर। लेकिन आप मुझसे पूछे कि अगर 25% अगर वो है तो हम 50% हम वाटर क्यों ऐड करते हैं, 40% क्यों ऐड करते हैं, 60% ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि वर्केबिलिटी भी एक फैक्टर होती है सर फिर, आई गेस। एग्जैक्टली, उसमें जो सीमेंट नहीं होती ना, सिर्फ सीमेंट होती ना, फिर तो हम देखते कि यार चलो 20% या 25% या सॉरी 25% 27% वाटर ऐड कर लेते, तो उसमें जो है ना उसकी वोकेबिलिटी के लिए आप जो है ना कोई एडमिक्सर से आप ऐड कर लेते, तो देन आप देखते कि उसमें जो है ना कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है ना प्रॉपर्ली फुली हाइड्रेशन ओके डेवलप हो जाती। लेकिन बट इन कंक्रीट यू हैव अनदर इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल उसमें जो है ना आपके पास सैंड भी है, उसमें आपके पास कोर्स एग्रीगेट भी है, उसमें आपके पास सप्लीमेंटेशन मटेरियल्स भी हैं, उसमें आपके पास जो है ना वाटर इटसेल्फ जो है ना उसकी जो क्वालिटी है वो भी इम्पैक्ट करती है ना। उसके पास पानी आपके पास तो ऐसा नहीं है कि दैट इज डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। सही है सर, तो समझ ये आ गई। सारी चीजें जो है कंट्रीब्यूट करती हैं वाटर की अमाउंट को। तो फिर जो है अब वाटर आप ऐड कर लेंगे 25%, तो कंक्रीट तो आपके पास ड्राई रहेगी। क्यों ड्राई रहेगी? बिकॉज हाफ द वाटर विल गो इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। पीछे पानी आपके पास तो नहीं बचेगा। एग्रीगेट जी तो सर। ड्राई होते हैं ना, तो वो जो एसएसडी पोजीशन पे बिहेव करने के लिए दे ऑलवेज बिहेव इन एसएसडी पोजीशन इन कंक्रीट। तो एसएसडी में आने के लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? वाटर अब्सॉर्ब करेंगे वो। जब वाटर अब्सॉर्ब करेंगे तो दैट वाटर विल नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर द वाटर सीमेंट रेशियो फॉर हाइड्रेशन पर्पस, ठीक है। उसके लिए आप जो है ना वो वाटर ऑफसेट करते हैं, उस जो ना पानी की अमाउंट को ज्यादा करते हैं। कितना ज्यादा करेंगे हम, उसकी एक लिमिट है। तो साइंटिस्ट ओवर द इयर्स हैव डन द रिसर्च, डिड के कितनी जो है वाटर कंटेंट कितने जो ना हम रेज कर सकते हैं,
और वाटर कंटेंट जो है ना हम जो मिनिमम स्ट्रेंथ है उस पे जो है ना वाटर कंटेंट कितने होने चाहिए। तो मिनिमम स्ट्रेंथ जो है नॉर्मल स्ट्रेंथ जो है ना इज डिफाइंड, कितनी है नॉर्मल स्ट्रेंथ है हमारे पास जी। घास हो रही है फिर क्यों? जस्ट मिनट बच्चों, 1 मिनट में कुछ कहना चाह रहा हूँ। इधर आओ यार। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, करवा ले साइन। अच्छा, हम कहाँ पे थे? तो उसके लिए ना आपको तो साइंटिस्ट ने आपके पास नॉर्मल जो स्ट्रेंथ जो है ना मैं बता रहा था कि सर आवाज नहीं आ रही, जी आपकी आवाज नहीं आ रही। बात। अच्छा, तो वाटर टू सीमेंट रेशियो जो है आपके पास जो है अच्छा मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो तो चले हम ले लेते हैं। मिनिमम स्ट्रेंथ जो है ना उसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो जो है ना बढ़ जाएगी ना, तो इट शुड नॉट बी मोर देन 60% कोड कहता है ना। तो ओवर द ईयर जो साइंटिस्ट ने एक बात एक्सप्लोर किया एंड देन दे फाउंड थ्रेशोल्ड वैल्यू कि आपके पास जो है ना 60% से ऊपर आप नहीं जाएंगे वाटर सीमेंट रेशियो में, ठीक है। और नॉर्मली जो हम बिल्डिंग अटैच करते हैं ना उसमें जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल जो स्ट्रेंथ हम डिजाइन करते हैं 3000 to 4000 जो ना PSI पे। तो अगर इफ कंक्रीट स्ट्रेंथ इज अबाउट 1800 PSI तो उसको हम एक्सेप्टेबल मानते हैं कि ठीक है जी ये स्ट्रक्चर जो है ना ठीक है इस पे चलेगी, लेकिन इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट फॉल बिलो देन दिस वैल्यू, ये आगे आगे पढ़ेंगे ना स्ट्रेस आप पढ़ेंगे तो कितनी स्ट्रेस रेट होती है जिसपे जो कंक्रीट फेल हो, तो वो स्ट्रेस अमाउंट जो है ना हमेशा जो है किससे कम होती है 1700 PSI से कम रहती है बिल्डिंग में। तो इसलिए अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है ना 1800 PSI है पाउंड पर स्क्वायर इंच, तो देन एट बेयर मिनिमम जो है that could be acceptable for during testing, but that is not acceptable during construction में आपके पास कितनी होनी चाहिए 3000 PSI होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन if there is anything went wrong तो उस केस में हम जो है ना उसको कर लेते हैं कि उस कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो एस्टिमेट होती है और उसको कैलकुलेट होती है, तो उसमें जो ना आपको मैं बता रहा हूँ। तो इफ द वाटर सीमेंट रेशियो वाज केप्ट हायर देन 60% तो आप स्ट्रेट अवे आपको मेजर करने की जरूरत ही नहीं है उसकी स्ट्रेंथ, तो इट विल बी नॉट ड्यूरेबल कंक्रीट, तो ऑफ कोर्स उसकी स्ट्रेंथ भी उससे कम होगी, ठीक है। तो आपके पास जो है बाकी फैक्टर्स भी हैं जो स्ट्रेंथ से रिलेटेड हैं। व्हाट काइंड ऑफ अदर फैक्टर्स? स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंटिशियस पेस्ट बाइंडर, बेसिकली स्ट्रेंथ जो होती है ना इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पेस्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्स एग्रीगेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरफेशियल बॉन्ड जो है ना ITZ, इंटरफेशियल ट्रांजिशन जोन जो है या इंटरफेशियल बॉन्ड जो है ना बिटवीन एग्रीगेट एंड द पेस्ट, तो इनकी स्ट्रेंथ को जो कंबाइंड इन तीनों की जो स्ट्रेंथ है वो जो ना डिफाइन करती है द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। उसमें जो लीस्ट एलिमेंट है वो जो ना वो क्या होगा, दैट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो नॉर्मली आपके पास जो है ना आपके पास होता है C30, लिखा होता है ना C30 by C कितना है 37, तो 30 मीन के इट्स द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड this mean is a cubic strength. Cube strength or cylinder strength में पता है आपको क्या होता है? The cylinder strength is always lesser than the
क्यों लेस होती है? आपने सिलेंडर टेस्ट किए बच्चों? नहीं किए? नहीं किए सर, नहीं। नहीं अच्छा, किया मैं सर। चलें इधर ही बता देता हूँ आपको, मैं आगे नहीं जाते। अच्छा, ऐसा होता है ना, इसका जो जब सिलेंडर टेस्ट होता है तो इसके ऊपर लोड यहाँ पे लग रहा होता है ना, ऐसे लग रहा होता है लोड, ऐसे ही है ना। तो नीचे से रिएक्शन उसको लगता है, मिलता है ना रिएक्शन, इसका फेलियर ऐसे बनता है। अच्छा, जितनी इसकी लेंथ है, सॉरी लेंथ नहीं, जितनी इसकी विड्थ है, उस विड्थ के हिसाब से उसका जो ना, तो 45 एंगल पे इसका जो ना फेलियर प्लेन बनता है ऐसे। नीचे से भी ऐसा प्लेन बनेगा। जो फेलियर प्लेन है वो कहां पे मिलेगा? सेंटर में मिलेगा ना। सेंटर पे क्यों मिलेगा? जी सर। बिकॉज द हाइट ऑफ दिस इज डबल देन दी विड्थ। 45 एंगल पे ना आपको फेलियर प्लेन बने, तो ये जो ना, जितनी इसकी विड्थ है इतना ही डीप हो जाएगा ना यार। ये कितना डीप जाएगा फिर? तो सेंटर तक ही जाएगा सर, सेंटर तक क्योंकि दो जाएगा ना, डायगोनल सेंटर पे ही मिलेंगे। जी सर, दो एग्जैक्टली डायगोनल सेंटर पे मिलेंगे। सेंटर में मिलेंगे। तो अच्छा, तो इसका जो फेलियर है, फेलियर ऐसा होता है कि जब ये जो साइड का जो एलिमेंट है, ये बल्ज कर लेता है आउटसाइड आउटर, और ये भी आउटर को बल्ज कर जाएगा और कंक्रीट क्रश हो जाएगी। तो दिस मीन द फेलियर इज प्योर shear failure. Pure is failure, प्योर द फेलियर इज प्योर shear failure. इस केस में जो है ना, आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी फेलियर की। जब ये अब इसमें देखें, लिसन, इस केस में आप देखो ना, जितना क्यूब की लेंथ है या उसकी टॉप है, इतनी इसकी हाइट भी है, तो इसका फेलियर प्लेन ऐसे बनेगा। सॉरी, ये यहां से फेलियर प्लेन बना इसके लिए, इधर से फेलियर प्लेन बना इसके लिए। तो आपके पास जो है, सॉरी, ये जो इसको मैं 1 मिनट, मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। हियर इज द क्यूब। क्यूब का जो फेलियर है ना, प्लेन ऐसे बनेगा। ये जो इंटरनल पोर्शन है, जब तक ये क्रश नहीं होगा, तो फेलियर हैपन बाय क्रशिंग ऑफ द इंटरनल जोन ऑफ द क्यूब। तो जब तक ये क्रश नहीं होगा, उस वक्त तक क्यूब फेल नहीं होगा। तो उसके लिए आपको shear स्ट्रेंथ के अलावा अब क्रशिंग स्ट्रेंथ भी रिक्वायर्ड है कंक्रीट की। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ इज ऑलवेज हायर देन दी shear स्ट्रेंथ। ठीक है ना। इसको जो क्यूब है उस वक्त फेल होगा जब जो इंटरनली इट विल गेट क्रश्ड। जो इंटरनल जो इसके जो कोर में जो उसके वो हैं, जो जो फाइबर्स हैं, या कोर में जो इसके जो ना जो एलिमेंट हैं, या इसका जो स्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट है, वो जो ना, जब तक वो क्रश नहीं होगा, तो उस वक्त तक जो ना क्यूब फेल नहीं होगा। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है विल बी हायर, बिट हायर। ये 37 तो इतनी हायर तो नहीं होती, तकरीबन ऑलमोस्ट 20% का डिफरेंस होता है, 15 to 20%। कितना डिफरेंस होगा? बाय थंब रूल इट इज 15 to 20%। तो 30 का 20% कितना होता है? 36। 20% ऐड करें 30 में तो कितना होगा? बोलो ना यार। सर 6 आता है, एडिशनल 6। 6 आता है ना, तो एग्जैक्टली। तो 20%, 15 to 20% जो है ना, आपके पास जो है ना, इफ यू हैव ए क्यूब स्ट्रेंथ, तो उसमें 20% वैल्यू लेस कर दें तो आपके पास सिलेंडर की स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है।
तो इसकी समझ नहीं आई आपको। ये जब आपको जो है ना मैं स्ट्रेंथ करवाऊंगा ना तो आपको मैं बता भी दूंगा जब वाइल ये जो टेस्ट कर लेंगे लैब में ट्यूब पे और सिलेंडर। अच्छा strength मुझे रिमाइंड करवाइए काइंडली द स्ट्रेंथ ऑफ द सिमेंटिशियस Yes. पेस्ट बाइंडर। जस्ट मुझे 2 मिनट देते हैं इस टॉपिक को मैं कंक्लूड कर लूं, ठीक है, इस स्लाइड को, तो देन Okay, फिर sir. अटेंड से the strength of the cementitious paste binder in concrete depend upon the quality and the quantity of the reacting paste component. Again देखो ना reacting paste जो है ना component quality और quantity पे दोनों पे डिपेंड करता है। If the higher the quality, higher will be the strength. If the lower will be the quality, the lower will be the strength. Quantity और quality दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। On the degree to which the hydration reaction has progressed, उस पे भी डिपेंडेंट है। हाइड्रेशन रिएक्शन जो है ना degree to which hydration reaction pass, how fast the hydration reaction was and how long hydration reaction was. तो ये दोनों जो है डिफाइन करते हैं degree to which hydration reaction got progressed. The concrete becomes stronger with the time as long as it is moist and a favorable temperature available. आपके पास जो है ना फेवरेबल टेम्परेचर अवेलेबल अब क्या आपको दे रहा है, बेसिकली आप बस क्यूरिंग टेम्परेचर दे रहा है, मॉइस्ट भी आपको क्यूरिंग दे रहा है। तो इफ द कंक्रीट फेवरेबल टेम्परेचर क्यूरिंग टेम्परेचर इज अवेलेबल टू कंक्रीट, इट विल बी स्ट्रॉन्गर विद द टाइम, ठीक है ना। स्ट्रेंथ उसकी डेवलप होती रहेगी विद द टाइम, क्योंकि आपने उसको क्यूरिंग कंडीशन अच्छी दी है, कंड्यूसिव टेम्परेचर उसको दिया है फॉर इट्स क्यूरिंग, सही है ना। तो इसको जो है ना सम अप करते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ एनी पर्टिकुलर एज इन बोथ is both a function of original water to cement ratio as well as degree to which cementitious material have hydrated. The importance of prompt and thorough covering is easily recognized. तो ये भी जो है आपके पास जो है ना एक पैरामीटर्स है। तो curing is also important parameters. आपके पास one is the curing, another one is the आपके पास strength पे किस पे डिपेंड कर रही है? डिपेंड कर रही है apart from the water cement ratio, the type of the cement, the amount of the cement, the curing condition, ऐसी है ना, and the hydration time and degree to which hydration reaction has progressed. तो इन सारी चीजों पे ये 4-5 पैरामीटर्स हैं, इन सब पे जो ना स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ऐसा नहीं है कि आपने वाटर सीमेंट रेशियो रख ली है और कवरिंग आप नहीं देना चाह रहे और उसको अवेलेबल नहीं है तो उस पर आपकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। ऐसा भी नहीं है कि इफ यू आर गिविंग कवरिंग कंडीशन फॉर होल 100 days और वाटर सीमेंट रेशियो आपकी जो ना प्रॉपर नहीं थी तो उसकी स्ट्रेंथ भी नहीं होगी। और या सीमेंट की टाइप जो थी, सीमेंट की जो क्वालिटी थी वो लो थी, या सीमेंट के जो कंटेंट थे दोज वर नॉट एट ऑप्टिमम लेवल, ठीक है ना, तो उसमें भी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी, ठीक है। एनी क्वेश्चन बच्चों रिगार्डिंग टुडेस क्लास? एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चों। सर हमारे पास जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ है और क्यूबिकल, सर इसके लिए जो डायमेंशन है ये सेम है इस टेस्ट के लिए, या डायमेंशन के मतलब अगर डायमेंशन हम चेंज करेंगे तो स्ट्रेंथ भी चेंज होगी? Just I should stop first the recording.